بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد کے ایک نواحی گاؤں سے ہے۔ میں نے گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بچپن سے ہی گھر میں میری ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا۔ میری والدہ میرا بہت خیال رکھتی تھی کیونکہ میں اپنے والدین کی شادی کے 7 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانی تھی جو گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ میں نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایلیمنٹری اسکول سے حاصل کی اور قرآن پاک کی تعلیم گھر کے ساتھ اماں حاجن سے حاصل کی تھی۔ اماں حاجن کی زندگی بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرتے گزری تھی۔ ہمارا گھر ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ صبح سویرے گھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ابو کی کافی زمینیں تھیں۔ گاؤں میں جہاں سے رزق کی فراوانی تھی اس کے ساتھ ساتھ ابو کا کاروبار بھی تھا، وہاں سے بھی خوب آمدن آتی تھی۔ میرے گھر سے کچھ دور ہی ہمارے چچا کا گھر تھا۔ میری چچی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شاکر تھا۔ ہماری چچی بیوہ تھی، اس لیے شاکر اکثر ہمارے گھر ہی رہتا تھا۔ میں بھی چھٹی والے دن اپنی چچی کے گھر جاتی جہاں پر میرا پورا دن گزرتا تھا۔ ہم سبھی تقریباً ساتھ رہتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں نے مڈل کا امتحان اپنے ہی اسکول سے پاس کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کے لیے داخلے کا والدین سے کہا تو ابو نے مجھے ہائی اسکول پڑھنے شہر بھیج دیا۔ یہ شہر کافی فاصلے پر تھا جہاں سے میں روزانہ آ جا نہیں سکتی تھی۔ ابو نے اسکول کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں میری رہائش کا بندوبست کر لیا۔ جب میں 9ویں کلاس میں تھی تو لڑکیاں میرے حسن کی تعریفیں کرنے لگی کیونکہ میں بہت حسین تھی۔ 5 فٹ قد، لمبے کالے بال، اونچی ناک، باریک گلابی ہونٹ۔ لڑکیاں مجھے کہتی تھیں کہ نازیہ تم پر تو خوب بہار آئی ہے۔ خیر 1 ماہ کے بعد میں اپنے گھر آئی تو میرا بھائی شاکر اب بھی ہمارے گھر پر موجود تھا۔ میں بھی کئی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ امی سے چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتا تھا۔ مجھ میں بہت دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک بار جب میں ہاسٹل سے گھر واپس آئی تو عید کی 1 ہفتہ کی چھٹیاں ہوئی تھیں۔ ایک دن شاکر ہمارے گھر آیا تو امی کے واش روم جاتے ہی اس نے مجھے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ پکڑا دیا، ساتھ ہی کہا کہ اپنی امی سے چھپ کر پڑھنا۔ جب وہ کاغذ اس نے مجھے دیا تو میرے جسم کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ سارا وجود دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دل پھٹ کر حلق میں آ جائے گا۔ اتنے میں امی بھی باہر آ گئی تو میں نے کاغذ کا وہ ٹکڑا چھپا لیا۔ جب امی ہمارے پاس آ کر بیٹھی تو شاکر نے کہا، خالہ جان میں چلتا ہوں۔ اب میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب مجھے موقع ملے گا اور میں شاکر کا دیا ہوا کاغذ پڑھوں گی۔ خیر دن گزر گیا۔ جب رات کو میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا باہر نکال کر پڑھنا شروع کیا جس میں لکھا ہوا تھا، جان سے پیاری نازیہ، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے اچھی لگتی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں پہلے بہت ڈرتا تھا کہ تم سے یہ بات کیسے کہوں، مگر آج دل نے ساتھ دیا تو کاغذ کا سہارا لے کر تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں ہر وقت تمہارے ہی خیالوں میں گم رہتا ہوں۔ واسلام، خیر اندیش شاکر۔ شاکر کا یہ محبت نامہ پڑھ کر میں رات کو سو نہیں سکی۔ رات بھر شاکر کے بارے میں سوچتی رہی۔ بلا شبہ میں بھی تو بہت ہی حسین ہوں، مگر میرا شاکر مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ خاص طور پر شاکر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی۔ خود شاکر بھی گورا چٹا، صحت مند اور خوبرو نوجوان تھا، گویا میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، میرے لیے ایک ہیرا تھا۔ میرے اندر بھی جذبات بڑھنا شروع ہو گئے کیونکہ اب میں بھی پیار محبت کی چکر میں پڑنے لگی تھی۔ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاکر کو اپنا دل دے بیٹھی اور اس سے اب روزانہ ملاقات کرنے لگی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میں FA میں داخلہ لیا۔
अब मैंने हॉस्टल में रहना छोड़ दिया था क्योंकि गांव में पढ़ाई का रुझान ज़्यादा होने लगा था। लोगों ने गांव से बच्चे और बच्चियों को शहर में पढ़ाने के लिए कैरी डब्बे लगा लिए थे। मेरे अब्बू ने भी डब्बे वाले से बात कर ली थी। अब मैं रोज़ाना कॉलेज से घर आ जाया करती। जब मैं कॉलेज में गई तो अब्बू ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया कि अगर शहर या कॉलेज में कोई मसला हो तो राब्ता कर लेना। खैर शाकिर ने भी मोबाइल ले लिया। रोज़ाना कई घंटे शाकिर और मैं फ़ोन पर बातें करते। किसी को कोई शक नहीं था। हम प्यार में इस हद तक बढ़ गए थे कि हमने ज़िंदगी भर साथ रहने का फ़ैसला भी अपनी जगह पर कर लिया था। जब मैंने एफए का इम्तिहान फर्स्ट पोजीशन में पास किया तो घर में एक दावत का एहतमाम किया गया। मेरी अम्मी ने अपने तमाम रिश्तेदारों को दावत पर मदऊ किया। मेरी अम्मी का ये ख्वाब था कि मैं बीए करने के बाद वकालत का इम्तिहान दूं। इंसान तो सोचता बहुत कुछ है मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन के बाद अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो अम्मी को एक इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। फिर डॉक्टर ने मनहूस खबर दी कि अम्मी को कैंसर है जो कि आखिरी स्टेज पर है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। आखिरकार एक हफ्ते के बाद अम्मी हमें अकेला छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गई। जब अम्मी की मैयत को घर में लाया गया तो घर में कोहराम मच गया। गोया मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझ पर बेहोशी की कैफियत तारी होने लगी थी। न जाने कब मेरी अम्मी का जनाजा उठ गया। सच है, अल्लाह जब जख्म देता है तो उसे भर भी देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान को सब्र करना आ जाता है। अम्मी की वफ़ात के बाद शाकिर चंद माह पाकिस्तान में रहा और फिर वो दुबई चला गया। जब शाकिर दुबई गया तो हम दोनों ने शादी की कस्में खाईं। कुछ अरसा तो वहाँ से शाकिर ने फ़ोन पर राब्ता किया मगर फिर ये सिलसिला कम होते होते न होने के बराबर रह गया। अम्मी की वफ़ात के 1 साल बाद अब्बू को रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के मशवरे देना शुरू कर दिए। ऐसे में चची से ज़्यादा माकूल खातून कोई न थी क्योंकि वो बरसों से बेवा थी और उनके भाई की इज्जत थी। तभी अब्बा जान ने हमारी चची से निकाह कर लिया। चची हमारी सौतेली माँ बनकर हमारे ख़ानदान में आ गई थी। चची का रवैया अब मेरे साथ बहुत सख्त था। वो बात बात पर मुझे डांटती और सारे घर का काम मुझसे करवाती, हत्ता कि अपने कपड़े भी मुझसे इस्त्री करवाती। बात बात पर मुझे जलील करना, बुरा भला कहना। अगर जब मैं अपने अब्बू से शिकायत करती तो कहते कि वो तुम्हारी माँ है, तुम सब्र करो। मैं चुप होकर तकालीफ सहने की आदी हो गई। एक दिन अब्बू दूसरी अम्मी को लेकर शहर खरीदारी करने गए तो मैं घर में अकेली थी। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की तो आगे से एक मर्द की आवाज़ थी। मैंने कहा, जी आप कौन? उसने कहा कि मैं वाजिद हूँ। मैंने पूछा, आपने मुझे कॉल क्यों की? तो उसने बताया कि उसने अंदाजे से नंबर मिलाया था और मेरा नंबर मिल गया। मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी। गोया माजिद की आवाज़ कॉल पर सुनने के बाद न जाने कब तक मेरे कानों में सरगोशी करती रही। वाजिद ने मुझे बताया कि वो सरगोधा के एक गांव में रहता है और वकील के पास मुंशी का काम करता है। उसने मुझे अपनी सारी फैमिली के बारे में बताया और ये भी कि वो गैर शादीशुदा है। खैर वक्त गुजरता गया था। हम हर रोज़ कई कई घंटे फ़ोन पर बातें करने लगे क्योंकि रात को मैं कमरे में अकेली होती। फ़ोन सुनने की कोई दुश्वारी नहीं होती थी। दोस्ती से बात मोहब्बत तक पहुंच गई। अब तो हमारी मोहब्बत में बेपनाह इजाफा हो गया था। साथ में हम दोनों ने हमेशा एक साथ रहने का वादा भी कर लिया था। मैंने उसे बताया था कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। चची मुझ पर बहुत जुल्म करती है, बात बात पर मुझे बेइज्जत करती है। वाजिद ने मुझे कहा कि अगर मैं घर में शादी की बात करूंगी तो मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे ख़ानदान की शादियां ख़ानदान में ही होती हैं। अब मैं भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि क्या करूं। तभी वाजिद ने मुझे बहुत सहारा और हौसला दिया कि तुम मेरे पास सरगोधा आ जाओ, हम शादी कर लेंगे। आखिरकार सौतेली माँ के रवैये से तंग आकर मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। एक दिन मेरी सौतेली माँ अपने ससुराल में गई तो मैंने मौका गनीमत जाना
और 5 तोले सोने के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी अपनी रख ली। अगले रोज जब सौतेली माँ आ गई तो मैं दिन को मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हो गई। 3-4 सूट साथ लिए और सरगोधा वाली बस में बैठी, साथ ही वाजिद को फोन कर दिया। वाजिद लारी अड्डे पर मेरा इंतजार कर रहा था। फोन करने के बाद मैंने अपना नंबर बंद कर दिया। जब मैं सरगोधा लारी अड्डे पर पहुंची तो रात के 8 बजे का टाइम था। मैंने वाजिद को पहचान लिया जो मेरे ही इंतजार में खड़ा था। वाजिद मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। उसने कहा कि यहाँ पर 2 दिन रहने के बाद हम निकाह कर लेंगे, फिर निकाह करने के बाद हम घर जाएंगे। अगले दिन वाजिद मुझे अदालत में ले गया, जहाँ पर हमने जज को बयानात कलम बंद करवाए और निकाह के बंधन में बंध गए। उसके बाद वाजिद मुझे गांव में अपने घर में लेकर गया। गांव में वाजिद का एक कच्चा मकान था। कच्चे मकानों को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा, हत्ता के घर में बैतुल खला तक नहीं था। हाजत के लिए सुबह सवेरे उठकर खेतों में जाना पड़ता। उसके घर वालों ने पहले तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक न किया, मगर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मेरी सास मुझसे अच्छा सलूक करने लगी। वक्त गुजरता गया। 1 साल के अरसे के बाद अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी और मुझे चांद सा बेटा दे दिया। मेरा शौहर और मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। फिर 2 साल गुजरने के बाद मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब शाकिर 5 साल का तवील अरसा गुजारने के बाद दुबई से वापस पाकिस्तान आया। मैं एक दिन अचानक अपने घर से लौटी। मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आ रही थी। मैंने अब्बू का मोबाइल नंबर मिलाया तो बात हो गई। अब्बू ने कहा तुम मेरे लिए मर गई हो, आइंदा कभी मुझसे राब्ता न करना। मैं बहुत कर्ब से गुजर रही थी। अपने तो फिर अपने होते हैं। मुझे अपने कजिन शाकिर का ख्याल आया, जो कि चची की शादी के बाद मेरा भाई बन चुका था। मैंने वही पुराना नंबर डायल किया तो शाकिर का नंबर मिल गया। शाकिर ने पूछा कौन? मैंने उसे बताया कि मैं नादिया बोल रही हूँ। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में आज भी तड़पता हूँ और सिसकता हूँ। मुझे शाकिर के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आ रहे थे। मेरे अंदर गुजरी हुई मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई। अब हर रोज हम दिन को प्यार भरी बातें करते। मुझे शाकिर की बातों ने अपने शहर में जकड़ लिया था। शाकिर ने मुझे बताया कि मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मैं बच्चों को देखती तो मेरे कदम थम जाते। अब मैंने बड़ी मुश्किलों से मैके आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब्बू मुझे कबूल करने पर तैयार न थे। सच कहूँ, अब्बू से ज्यादा मुझे शाकिर का दर्द सता रहा था। मैं और शाकिर इन्हीं मंसूबा बंदियों में मसरूफ थे कि एक रात मैं बाहर शहर में शाकिर से बातें कर रही थी तो मेरे देवर ने मुझे शाकिर से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया। मुझसे पूछने लगा, भाभी आप किससे बातें कर रही हो? भाई तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप हैं कि आप उनसे बेवफाई कर रही हैं। मुझे बहुत अजीब लगा, गोया मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो मेरी हकीकत मेरे शौहर को बता देगा। ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी कि मैं अपने देवर से कोई ताल्लुक़ रखूं। तभी मैंने उसे मुंह न लगाया। उसने मेरे शौहर को बता दिया। मैंने अपने शौहर से बहुत माफ़िया मांगी, मगर वो बहुत गुस्से में थे और मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। अगली सुबह जब वो दफ्तर से रवाना हुए तो उसके हाथ में कागजात थे। उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, मगर मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। अब तुम अकेली जहाँ जी चाहे चली जाओ। मेरी सास भी इस अमर पर हैरान थी, क्योंकि वो भी एक माँ थी। खैर मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगी। बोझल कदमों के साथ अपने गांव आ गई। शहर आकर मैंने अपने कजिन शाकिर को फ़ोन किया। उसे बताया कि उसकी वजह से मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है। अब वो आकर मुझे ले जाए, मगर वक्त बहुत ही बेरहम होता है। आज मुझे अंदाज़ा हुआ था कि शाकिर मुझसे कितनी बेवफाई कर रहा था। तभी उसने वो बात बोली कि मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। बोला, तुम बेवफा हो, मगर अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने हर पल तुम्हारी मोहब्बत को अपने सीने से लगाए रखा, मगर नाजिया तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। आज मैंने तुम्हारा घर तबाह करके तुमसे तुम्हारी बेवफाई का बदला लिया है। जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं।
आज मेरे लिए दुनिया में कोई भी अपना न रहा था। सभी बेगाने हो गए थे। मैं तो लुट गई थी। शाम होने वाली थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अड्डे पर से निकलते हुए मैंने एक बोर्ड पढ़ा और दारुल अमान आ गई। मैं चुपचाप आंखों से बहते आंसुओं और टूटे हुए दिल के साथ अपने बेजान होते जिस्म को घसीट कर दारुल अमान में ले गई, जहां मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कुछ दिन पहले मुझे अपने वालिद की याद सताई। मैंने अपने वालिद को ख़त लिखा, सभी तफसीलात से आगाह किया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। पता नहीं वालिद मुझे कब माफ़ करेंगे। अब मैं अपने वालिद के ख़त या उनकी आमद का इंतज़ार कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि मेरे वालिद मुझे लेने आ जाएं। आखिर में मैं यही कहूँगी कि जज्बात के फ़ैसले हमेशा पायदार नहीं होते। जज्बात के फ़ैसले नुकसानदेह होते हैं और तमाम उम्र अज़ियत का बाइस बनते हैं। आज जज्बातियत मुझे इस मोड़ पर ले आई है। मेरी इस कहानी से हर वो लड़की सबक सीखे जो अंधे इश्क की खाई में खोने को पूरी तैयार है। इस इश्क के खेल में ना खुदा मिलता है और ना ही सनम। खुदा के लिए खुद को संभालें और मोहब्बत के इस खेल से बाज रहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।